guys, this is 12 and Fields podcast. I'm Ishita. I'm Tanya. We are with Rohit. Hi, Rohit. Hello. Hi. Very formal introduction. Hi. I'm not used to introductions at all. I just find it very irrelevant sometimes. So how you decided like कि stand up ही करने का है? कभी कभार मेरे को अपने designs पसंद नहीं आते. Our cover is also designed by Tanya. Oh, nice. अब मेरे को वो पसंद नहीं आ रहा. चुप हो जा, it's nice. हाँ तो मुझे भी मेरे पॉडकास्ट के एपिसोड्स पसंद नहीं आते. It's not. I have a very self-critical attitude towards my work. I don't like any of my work. So, but I put it out anyway because that's what I can produce as of now. मतलब मुझे लगता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है. Even if I do jokes on stage, even if I get laughs, I go home and think about it and like ये गलत कर दिया, ये कर सकता था. So I'm very much self-critical of my work. मैं खुद का ये नहीं कर सकता. Although I can't be happy with my own work, and sometimes I think it's bad and good because sometimes you gotta be like, हाँ यार अच्छा ही तो कर रहा है. But then if you're also very self-critical, you keep on improving as well, right? You don't have that plateau wala stage where like you always keep pushing yourself. And to answer the question कि मतलब मुझे podcast भी करना है, stand up भी करना है. तुम लोगों से काफी बुढ़ा हो यार. मैं 26 साल का हूँ. So like I did my job for quite some time and then I was like, fuck, this is not I want to do. This is not fun. So I did everything. I did coding, I did content writing, I did a daytime full-time corporate job, and I did stand-up, and I realized सब में से मेरे को कौन सा ज़्यादा पसंद आ रहा है तो मैं वो कर रहा हूँ. And these are the things I know. If I get new skills, I don't know. Probably I will do that too. तो जैसे कहते हैं ना कि पैशन से अगर कमाने लग जाते हैं तो वो बोरिंग हो जाता है. I don't know, I've heard many people say this, but I also somewhere believe that if you are earning from what interests you, it's also a good thing because you are also earning money while enjoying the work you're doing. तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या अभी तक? हाँ, like I host and produce a podcast. I mentioned that earlier. So I enjoy doing that thing. मतलब it's basically I just have to talk. It's a company and I have to talk to their employees very casually. So it's a remote company. So employees एक दूसरे को मिलते नहीं. But this podcast is a form for them to get to know each other, right? So like it's a 40 minutes episode on every employee is talking to me and they're opening up. So all I have to do is just talk, and then there's this post production wala jo bhi part hai, and that's also pretty easy to me as of now because that like I've been editing my podcast for like 1 year now. So now I know how to edit it in 15-20 minutes and that gives me money and I enjoy it क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ मेहनत नहीं लगता और मेरे को मजा भी आता है. It's not like I'm doing a core unlike when I'm doing my marketing work where it just feels like fucking get this done with wala. It's more like let's do it and sometimes I just go overboard also कि वो लोग बोलते हैं कि 40 मिनट का पॉडकास्ट करना बट मैं बात करते करते मैं 1.5 घंटा हो जाता है मेरे को समझ में भी नहीं आता. So that is fun and getting paid for it is just like a bonus. मतलब वाह मजा भी आ रहा है पैसे भी मिलते हैं मजा आ गया. ये तो है ही. पॉडकास्टिंग हमें भी पसंद है तभी हमने शुरू की थी. एक्चुअली ताने की वजह से शुरू की थी हमने, बट फिर बीच में अभी जाके वो थोड़ा हेक्टिक हो गया क्योंकि हमारे कॉलेज की वजह से स्केड्यूल बिल्कुल मैच नहीं करता. एंड फिर पॉडकास्टिंग को हम ना एज अ बर्डन लेने लग गए कि हमें कुछ नया लाना है क्योंकि इतना ज्यादा कंटेंट है बाहर. इट्स नॉट इजी टू मेक eye grabbing, attention grabbing content. But why do you want to make attention grabbing content? क्योंकि कोई सुनेगा नहीं ना फिर. तो कोई सुनने तो वैसे भी नहीं वाला है. I mean, it's just like yeah, I got this a lot from my friends and other people. Like I don't know if you guys have heard my podcast. It's very Yeah. unfiltered, and I talk a lot of shit on it. And people tell me, "Keith, why are you talking about these things? Why are you talking?" Because I like talking about it. And eventually, I just realized that I don't want to create a content which gains, uh, which caters to an audience. I would rather create a podcast where I can cater an audience that wants to listen to me. फर्क नहीं पड़ता ऐसा. बहुत लोगों ने recommend किया कि तुम लोग कुछ आउटसोर्स कर लो, दूसरे लोगों के ओपिनियंस लो डालने से पहले. हायर कर लो. मैंने कहा हायर कहाँ से करेंगे ये बताओ. सजेशंस देने वाले बहुत लोग हैं यार. सुन के छोड़ देने का हाँ हाँ बोल देने का फिर भूल जाने का. That's what I do. कोई बोलता सजेशन ये चीज बोल सकता है मैं हाँ या. They don't know like what you are going through while you're recording a podcast, right? तुम podcast से पहले सोचते हो कि मैं ये पूछूंगा उसको, but sometimes you just forget एक दो questions and it's perfectly fine, it's normal and it's just
तुम्हारे कंट्रोल में जो है तुम उस चीज को चेंज कर सकते हो. पीपल आर लाइक तू ये ऐड कर, तू ये लाइटिंग खरीद, नया माइक खरीद. हाँ तो पैसे तू देगा नहीं ना. True. Obviously. So started there was this COVID thing ना, तो लोग एक दूसरे के घर नहीं जाते थे. तो I used to just record with my friend on road side. मतलब हम ऐसे रोड पे मिलते थे, वहाँ पर फोन पे रिकॉर्ड करते थे. एंड ऑडियो यूज्ड टू बी शिटी. एंड गाड़ियों का आवाज चल रहा है, बाप रे. सब सब कुछ हो रहा था और सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है. एंड दैट वाज लिटरली जस्ट रिकॉर्ड करके डाल दिया, बस यही था. इंट्रो डाल दिया, आउटरो डाल दिया, बस डाल दिया. कुछ एडिट नहीं किया था, सिर्फ आवाज थोड़ा बहुत मैंने जितना हो सके ऊपर नीचे किया. गाड़ी का आवाज कम हो सकता है तो ठीक है. बट लाइक दैट्स हाउ यू स्टार्ट. इवेंचुअली यू जस्ट put it out and then you can just learn ना. तुमने वो बुक Yeah. पढ़ी है called Steal Like an Artist? नहीं. नहीं. It's by Austin Kleon. Kleon. I'm hoping that I'm not wrong with this fellow. So that book essentially is about, should be read by anyone, any artist who's just starting out. क्योंकि it has a lot of, I mean ऐसा कुछ, as an artist तुम्हें ये नहीं बताएगा वो कि तुम्हें क्या करना है. But as an artist, in cases of self doubt, in cases of having self imposter syndrome, then you're like, I don't know वाला, मतलब am I just copying someone? So like basic questions का it gives a good solution. And plus stealing is part of an art. I mean, that's just there. Even there's a great saying as well that good artists create and great artists steal. चुराओ हो सके तो बस उसमें अपना टच दे दो. शुरू शुरू में तो वही होता है, but then you eventually find your Yeah. own rhythm. Like even in stand up, like I can only talk about things I know. So even in stand up, everyone starts by copying one of their favorite comics, like their style, their mannerisms, everything. And then you figure out कि ये मेरा है नहीं, ये मेरे लिए चल नहीं रहा. But at least that helps them to get on the stage and get out of that fear वाला zone, nervousness, anxiety जो भी है. Right. So yeah. फन मोमेंट्स बताओ, रिकॉर्डिंग के Fun या moment. फिर कॉमेडी शो पे आप गए हो, कभी ऐसा हुआ हो कुछ फन? बहुत बार हुआ है यार. मतलब जब पागल ऑडियंस आती है कभी कभी कुछ भी बोलती है तो मजा आता है उनको लेने में. कोई कुछ भी बोल देता है यार. अभी रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू अ गाय इन द ऑडियंस एंड आस्क्ड हिम कि मतलब कि तू कितने लड़के के साथ डेट पे गया है. लाइक वो सोच रहा था, मतलब 2, 6, 8. फिर उसने बोला कि मैं अपने बहन के साथ डेट पे गया हूँ. मैं बोला क्या. और लाइक ऐसे कुछ ना कुछ लाइक फ्री काइंड ऑफ लोग आते रहते हैं. एंड आई हैव आल्सो बॉम्ब्ड अ लॉट. I mean, because my even in my, do you guys know what's blue comedy? Blue Basically, blue comedy. comedy is just like blue film, पता है ना? ब्लू कॉमेडी, ओके. मेरे को Oh, ग्लू अच्छा. सुनाई दे रहा था. So blue comedy is basically just like a dirty, sexual हम्म. humor, ganda, touchy, sussu, potty. So I joke a lot about those things. And I live in Ahmedabad and यहाँ पे थोड़ा उतना ऐसा scene है नहीं. I don't think Bangalore, Bombay जैसा scene है कि like people are like chill and all that. So काफी बार हुआ है कि like people have got disgusted by my said like even in front of me they started making faces. And पता नहीं, it's just I'm kind of programmed in that way. When people do that मेरे को और मजा आने लगता है. I just go overboard with stuff. That is fun. Bombing is something that like पहले बहुत खराब लगता था कि यार कोई नहीं हंसा, shit fuck. अभी कोई बॉम्ब होता है तो हम लाइक यस दिस इज, अभी मैं मजे करने वाला हूँ. अब मेरे को इनको हंसाने की पड़ी नहीं है. अब जस्ट आई एम डूइंग इट फॉर माय ओन सेल्फ. एंड लाइक ऐसा है ना कि स्टैंड अप कॉमेडी जस्ट इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म वेयर इट जस्ट lets you say stuff on stage in front of people that you in general won't say in public. Yeah. I have a very dirty mind and also very perverted mind as well. So I just like to say these kind of things. Not like people think जानबूझ के बोलते हैं. मैं नहीं bro, मेरा दिमाग ही ऐसा है. I'm just this way. And then like, this is an outlet for me to like get it out of my brain. And so Yeah. it's fun. जब तुम ऐसे you like start opening up, so every kind of conversation is that, you know, the dirty mind, double meaning. And to be honest, it's fun कि मतलब तुम कितना ही politically correct बातें कर लोगे, क्या करना है बात कर. होती भी नहीं है इतनी. आई डोंट नो, मतलब आजकल बॉलीवुड की स्क्रिप्ट, मतलब मैं ऐसे एनालाइज करती रहती हूँ मूवीज देख देख के ना, तो बॉलीवुड की स्क्रिप्ट और उसकी स्टोरी लाइन, it's getting shittier day by day. I don't know. It doesn't make any sense. The Yeah. Bollywood movies of nowadays, they are just मन ही नहीं करता देखने का. पहले की देखो और अब की देखो, they just have such a huge difference. Like I can watch the 10 या 20 साल पुरानी movies बार बार and still not get bored of them. कौन सी मूवीज? वो वाली चुप चुप के देखी है आपने? चुप चुप के, हाँ. Queen. मेरी लाइक फेवरेट कौन आई सी? चुप चुप के, फिर हेरा फेरी. आई थिंक मोस्ट मूवीज दैट वी गोइंग टू मेंशन, चुप चुप के हो गई, भूल भुलैया हो गई, बोल फिर भैया. हेरा फेरी हो गई. Like these movies are copies of Malayalam movies that I watched
growing up in Malayalam because I am Malayali. Oh. So like for me, it was like watching a copied version of a Malayalam movie. And not saying those were bad. Like I actually enjoyed the Bol Bulaiya Hindi wala much more. Like in Malayalam se zyada I enjoyed that one much more better. Probably because उस time पे I liked Akshay Kumar. Now he just does patriotic shit. सब जगह tampon और वो बांटने ही निकल रहा है आजकल तो वो is just kind of virtue signaling that goes in movie right now. But I last watched कौन सा जर्सी देखी थी मैंने शाहिद कपूर वाली. इसमें I enjoyed शाहिद कपूर's acting. मैंने भी देखी है. अच्छी नहीं लगी मेरे को तो ठीक थी. मतलब शाहिद कपूर एज अ फादर आई वुड से उसका जो कैरेक्टर था वो बहुत अच्छा था. बट फिर लास्ट में बहुत ज्यादा मैं ऐसे थी यार क्या हो रहा है ये. हाँ एंडिंग थोड़ा बेकार है उसका. बट लाइक आई थिंक लाइक द कोर एसेंस ऑफ द मूवी वाज अबाउट द फैक्ट कि what happens to a guy when he just stops pursuing his dreams. Basically just loses his own value, his own life. Well, it's kind of, have you heard of this guy called बहुत पुराना फिलोसोफर है फेडरिक नीत्शे. नाम सुना तो होगा कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे पॉपअप हुआ होगा. फाइट क्लब मूवी के बारे में पता है? फाइट नहीं डेविड फिंचर वाली ब्रैड पिट है. So like that movie is basically about it's about the fact that like okay, how current society is about like all about emasculating men, right? मतलब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्या कर रहे हो तुम, ये क्यों इतना, ये क्यों करते हो, इतना मारधाड़ क्यों करते हो वगैरह वगैरह. So, उस टाइम पे ये मूवी निकली थी which was like a little ahead of its time, but at this moment that movie makes a lot of sense. So I wouldn't want to spoil anything for you, and I don't think even you guys will enjoy that movie, to be honest. I don't think that. ओके. आपने द But like डिक्टेटर देखी है? हाँ देखिए, कैसी लगी आपको? मेरे को तो बहुत मजा आया देखने में. फनी मतलब थी मैं ना स्कूल बहुत में था ज्यादा. जब, बहुत ज्यादा फन. हाँ तब ऐसा लगा होगा ना कि शिट ऐसा मूवी में भी होता है. नहीं मेरे को तो हंसी आ रही थी बहुत ज्यादा. उसकी बोरत देखिए, सेम एक्टर शाशा बोहन को बोरत करके मूवी है which is much more like vulgar than Dictator. ओके. A lot of crazy movies this. And Delhi Belly release हुआ होगा तब तो तुम लोग like probably बहुत छोटे थे. देखा है तुम लोगों ने? नहीं देखी फिर तो तुम लोगों ने अच्छी मूवीज देखी नहीं है बॉलीवुड. You भाई should watch Delhi मेरे को Belly. लगता है हमने देखी नहीं अच्छी मूवीज. मतलब जो देखी है थोड़ी बहुत ही देखी है. हो सकता है. और बाकी तो वो साउथ से वो करके होती है स्क्रिप्ट लेके वो लोग दे जस्ट तो मेक मूवीज. बहुत लेट शुरू हुआ है. मतलब I know like while I was growing up Bollywood was pretty good, like everyone enjoyed watching Bollywood movies, and तब इतना इन्फ्लक्स भी नहीं था हॉलीवुड मूवीज का कि like we had a comparison metrics. Right now what is that everyone has the access to Netflix and Prime, so they're watching these well-produced English Hollywood movies, Korean movies, and then now they started comparing that to Hindi movies. ट्रू. पहले सिर्फ हिंदी मूवीज ही थे. हॉलीवुड मूवीज चाहिए होते तो भी कैसे, मतलब वो भी हिंदी डब में मिलता था या फिर वो लारी पे 5 मूवीज का डीवीडी मिलता था, उसमें से देखना हिंदी पड़ता डब था. कितना गंदा होता है. गंदा होता है बट उस टाइम पे वही ऑप्शन होता था. पता है कुछ में पंजाबी डाल देते हैं, पंजाबी एक्सेंट के साथ हिंदी डबिंग. जुमानजी उसकी देखिए, जुमानजी की डबिंग हिंदी वर्जन मतलब. नहीं मैं छोड़ दिया हिंदी में देखना यार, अब ऑप्शन है तो ओके. क्यों नहीं देखूं इंग्लिश. हमने भी छोड़ दिया ऑलमोस्ट. टीवी पे आ रही थी. You should watch this Delhi Belly Netflix पे है, कभी टाइम मिले तो देखना. It's like I would say it was like a path breaking movie in Bollywood because ऐसा किसी ने कभी बॉलीवुड में बनाया नहीं. तो वीर दास, इमरान खान एंड कुणाल रॉय कपूर, बहुत स्पेक्टेकुलर मूवी. छोटी मूवी है, सिर्फ 90 मिनट की है. और मैं अभी रिसेंटली अक्षय कुमार की वो आई थी बच्चन पांडे. गलती हो गई मुझसे, मैंने देख ली. अरे अक्षय कुमार को क्या हो गया आई डोंट नो बट दैट मूवी इज शिटी. मेरी मम्मी कह रही थी देखते ना देखते हैं. मैंने कहा देखो. मेरी मम्मी ने 10 मिनट देखी होगी, बंद कर दी उन्होंने. मतलब ये बच्चन पांडे का लाइक इट वाज अ कैरेक्टर इन इस टशन करके एक मूवी थी, उसमें उसमें कैरेक्टर का नाम था बच्चन पांडे. आई थिंक उसका कोई स्पिन ऑफ टाइप है. मैंने नहीं देखी. आई वॉच द ट्रेलर एंड लाइक गॉट इट कि नहीं देखना. लाइक I watched trailers of all Bollywood movies and that's how I judge. तो मतलब ट्रेलर अच्छा है और ट्रेलर में अगर स्टोरी पता चल जाता तो नहीं देखना, क्या पॉइंट है. भाई मैंने वो नहीं देखा था ट्रेलर. मैं सीधा प्राइम पे गई. मैं बोर हो रही थी, मैंने खोल ली और फिर मैं ऐसी थी क्या है ये. ऐसा मेरे साथ एक और बार हुआ है. तूने गहराइयां भी तो देखी. उसी दिन मैंने गहराइयां भी देख ली थी. मेरा तो वो पूरी रात खराब हो गई मेरी.
नहीं, I have not seen that movie. मत देखना। वैसे रिव्यूज तो काफी अच्छे थे कि है टट्टी मूवी है वो। मतलब मैंने तो जितने रिव्यूज देखे बेकार ही थे। देखो ट्रॉमा तेरा वो हो गया था ट्रिगर। ट्रिगर हो गया था मेरा। मेरे को एक्चुअली आई थिंक मैंने ना आई थिंक वार्निंग थी उसमें, आगे मैंने देखा नहीं, उसमें बहुत ज्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा से वो है, तो उसमें दीपिका पादुकोण को एंजाइटी होती है, तो मेरी उसको देख के मेरे को एक ट्रिगर हो गया था। तो हाँ, बट स्टोरी इज नॉट दैट ग्रेट आई वुड से, क्योंकि बेटर मूवी बन सकती थी, वो अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते थे आई वुड से, एंड इट वाज नॉट गुड। मेरे को पसंद नहीं आई ज्यादा। नहीं, people go and watch these stuff because they envy that kind of fucking lifestyle. Like why Instagram is so popular, because everyone on Instagram is envying someone else's lifestyle. They're like, वो Maldives में vacation करने गया, wow क्या bedroom है उसका, वो beach side view, wow. And that is what sells, and just at some point you will realize that this is fuckery, and then you can watch all this shit and not get affected. एक बार मूवी हॉल गई थी, वहां पे मेरी फ्रेंड ने मेरे को बुलाया था, ठीक है, अभी वैसे हम अभी दो ही हैं, एक और बन गया, हम लाइक वी आर ट्रियो। तो उसने बुलाया मेरे को, ये थी नहीं, इसे पसंद नहीं मूवी हॉल में मूवी देखना। हम लोग गए मूवी, अब मेरे को मूवी का नाम भी पता नहीं कि एग्जैक्टली कौन सी मूवी है क्या है, मैंने ना ट्रेलर देखा, मैं बस चली गई ऐसे मजे मजे में। तो वहां पे मूवी का नाम था तड़ा, और उसमें तारा सितारे आती, और वो थी पूरी लव स्टोरी वाली, ठीक है। आप मत देखना, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ क्या था। उसमें वो लड़का, वो दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, फिर वो तारा सुतारिया उसे छोड़ देती है, तो वो लड़का वही नशे वशे, और वो 3 साल तक तड़पता रहता है। फिर पता चलता है कि तारा सुतारिया ने उसका काट दिया, बाद में 3 साल बाद उसे पता चलता है, तो वो उसे ऐसे मार देता है। अब वहां आए थे कपल्स, पूरे पीछे कपल्स बैठे थे, मैं और मेरी फ्रेंड ही थे सिर्फ, बाकी सब कपल्स बैठे थे। अब वो मतलब बंदियां तो सदमे में चली गई ऐसा लग रहा था। देवर लाइक, मतलब लास्ट में वो लड़की उसे काट देती तो सब ऐसे सदमे में चल रहा है, कोई रो रहा है, कोई, मैं खड़ी हुई मूवी हॉल में, जैसी लाइट ऑन हुई मेरे को हंसी आ रही है, मैं हंसने लगी, मैंने सबको देखा सब रो रहे हैं, फिर मैं बैठ गई, मैंने कहा अरे यार क्या। मेरी दोस्त भी रो रही थी, मैंने कहा इसमें रोने की क्या बात है, काट दिया तो काट दिया। मेरे को बहुत हंसी आ रही थी मूवी देख के, द स्क्रिप्ट वाज रियली शिटी। हाँ, आई चला भी नहीं ना वैसे भी वो मूवी, तो कुछ मूवी का नाम ही क्रिंज है तो भाई ऐसा लगा। ठीक है, नहीं हमने भी बहुत घटिया मूवीज जाके देखी है थिएटर में। मार्वल का कोई मूवी चल रहा था, मैं और मेरा दोस्त जाके आयुष्मान की कोई मूवी देख के आ गए थे, कोई मेरी प्यारी बिंदु करके एक मूवी थी उसकी। जस्ट लाइक के नहीं देखना अच्छी मूवी, घटिया मूवी देख के, और फिर वी रिग्रेटेड इट, मतलब अच्छी मूवी देख सकते थे, क्यों पैसा बिगाड़ा, क्यों टाइम बिगाड़ा, ठीक है। Then you can talk about these things on a podcast and make content out of it. So I think like आज के जमाने में मेकिंग कॉमेडी मूवीज हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। कह सकते लाइक हैं। इफ यू जस्ट पीपल आर अफ्रेड, राइटर्स डायरेक्टर्स आर ऑल अफ्रेड कि अगर मैं ये बोल दूं, ये कर देंगे तो कोई एक पर्टिकुलर साइड ऑफेंड हो जाएगा। ये तो है। इन दैट एफर्ट दे जस्ट नॉट गो, दे डोंट मेक अ गुड मूवी, दैट मेकिंग गुड कॉमेडी मूवी। भाई लाइक वेयर आर यू गाइस फ्रॉम, इन इंडिया कहाँ से? अभी तो वी आर फ्रॉम बट उसके अलावा मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मम्मा और पापा लखनऊ साइड से हैं, बट मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ, सो या। दिल्ली सही जगह है यार। अच्छा, वाज देयर फॉर 1 ईयर, खाना बहुत खाया मैंने उधर। दिल्ली का खा खा के पेट खराब हो गया। खराब हो गया नहीं, खराब नहीं हुआ कभी। नहीं हुआ था एक्चुअली, आई हैव अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके। सो हम लोग सुबह सुबह, हमारा प्लान था कि आज मैं और मेरा दोस्त एक सुबह सुबह पेड़ थे, आज पूरा दिन खाना खाना है, तो हम लोग गए सुबह गुड़गांव से मेट्रो लेके पराठे वाली गली, फिर वहां पे पराठे, फिर वो नटराज के वहां पे टिक्की और चाट, फिर हम लोग कुछ भी खा रहे थे, उसके बाद पानी पूरी, गोलगप्पे पानी पूरी खा रहे थे, फिर हम लोग कुल्फी खा रहे थे, फिर जलेबी खा रहे थे, मतलब कुछ सोच नहीं रहा क्या खा रहे, बस बस एक चीज के ऊपर एक चीज के ऊपर एक चीज बस ठूस रहे। और फिर मेरा पेट खराब हो गया, बट मेरा ऐसा था कि मेरे को भूख तो अभी भी लगी है, भले पेट खराब हो, खाते खाते शाम हो गई, एंड देन मेरे लाइक कि अब वो जो बाबा सिंह साहिब का गुरुद्वारा है ना, वहाँ पे लंगर में खाएंगे लास्ट, और फिर वहां से घर निकलेंगे। तो फिर वो भी वहां से फिर मेट्रो में गए, और वहां जाके लाइक आई स्टार्टेड फीलिंग बैड, मतलब मेरा ऐसा कि अभी मैं हगने नहीं गया तो रास्ते के बीच में सीन हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग वॉशरूम, एक ऐसा पब्लिक वॉशरूम जैसा ढूंढा, एंड प्रॉब्लम उस टाइम ऐसा देख, लाइक मेरा तब ऐसा नी का एक लिगामेंट टूट चुका था, आई कैन नॉट सिट इन इंडियन टॉयलेट, मतलब मैं अपने घुटने मोड़ नहीं सकता था, तो वहां पे टॉयलेट तो मिल गया हगने के लिए, बट मैं उस पर बैठ नहीं सकता।
एंड लाइक कुछ भी करके फिर तो ऐसा होता है कि जस्ट एट दैट मोमेंट ऐसा प्रेशर बिल्ड्स अप सो मच दैट यू लाइक फक इट, दुखे तो दुखे, कर लेते हैं। फिर वो वहां पे हगा मस्त, और उसके बाद फिर वापस जाके खाया लंगर, एंड फिर वापस घर जाके वापस हगा। एक गुड एक्सपीरियंस, जो जिस दिन खाया उसी दिन सब निकल गया बाहर। तुम लोग कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं कह रही थी कि मैं ऐसे ही, मेरा भी पेट पेट क्या, मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई थी सीधा। मेरे को क्या हुआ था कि हम लोग मतलब अब तो मैं नहीं खाती बिल्कुल रोड साइड से, बिल्कुल भी नहीं। आफ्टर दैट तो क्या हुआ था, मेरे को बहुत भूख लग रही थी कॉलेज के बाद से। एक तो हमारे कॉलेज के आसपास कोई खाने वाली जगह नहीं है, मतलब मैं क्या बोलूँ, वो 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, फिर खाने वाली जगह मिलती है। तो मैं गई मेट्रो से, मेरे 2 इंटरचेंज होते हैं, एक मेट्रो से उतरो, फिर दूसरे मेट्रो में चढ़ो, फिर आती हूँ मैं घर। तो उसके बाद दूसरी मेट्रो में इतना ज्यादा मेरे को भूख लग रही थी, मैं पागल हो जाती हूँ भूख लगती है ना। चलो, आई कैन सी एनीथिंग अराउंड कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या एक बंदा फोन पे बोल रहा है, मेरे को बस ऐसा होता है खाना खाना खाना। तो मैं गई, वहाँ पे मोमोज वाला खड़ा था, मैंने मोमोज खा लिए बस। बस उसके बाद जो मेरी रात को हालत हुई है ना, उल्टियां कर करके ऐसा लगता था सारे ऑर्गन्स बाहर आ जाएंगे। आई वाज लाइक स्टैंडिंग इन द बाथरूम फॉर होल नाइट एंड जस्ट प्यूकिंग एंड बहुत खौफनाक रात थी। उसके बाद से मैंने मोमोज खाने ही बंद कर दिए और अब मोमोज रोड खाने छोड़ साइड से भी दिए? खाना बंद कर दिया। हाँ, ताना ने छोड़ दिए वो। हाँ, अब इसके चक्कर में मैं बहुत ब्रोक चलती हूँ, क्योंकि मैं थोड़े ढंग की जगह का खाती हूँ, तो फिर वो थोड़ा, वो नया मैं खाती नहीं। नहीं, तुम जितना खराब खाना खाओगे मेरे को लगता है उतना तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर हो जाता है, गेट्स इम्यून टू इट। जैसे अभी तुम अच्छा खाना खाओगे तो फिर तुम खराब खाना नहीं खा सकते, बाद तुम खराब खाना खाओ तो फिर तुम अच्छा खाना भी खा सकते हो, खराब भी खा सकते हो। ब्रोक रहने की जरूरत नहीं है, खा बाहर से, बेकार जगह से। यू आर फ्रॉम लखनऊ, वहाँ पे है ना वो फेमस कबाब वाला, टुंडे कबाब। टुंडे कबाब, बिरयानी, खीर, मैं गई वहाँ है की लखनऊ। खीर काफी बार ट्रेन से। टुंडे कबाब बहुत सही है यार, मतलब मैंने बहुत सुना है उसके बारे में। जब मैं गुड़गांव में था तो एवरीवन यूज्ड टू टॉक अबाउट टुंडे कबाब। हम्म। हाँ, तो सब वहाँ पे उनका कुछ ऐसा बीफ वाला भी कुछ आता है, जो आई वांट टू ट्राई। हाँ, आई मेरे पापा आई अगेंस्ट ट्राई रहता है कि बीफ बीफ के, नहीं खाने का, बीफ नहीं खाने का। मैंने कहा ओके। खाया है। नहीं, मैंने खाया नहीं है। मम्मी पापा के साथ जाती हूँ मैं, ऐसे अकेले जाओ तो फिर ट्राई भी कर सकते हैं, बट मम्मी पापा के साथ जाती हूँ मैं तो। मेरे पापा तो बहुत अगेंस्ट है। हम वैसे नॉन वेजिटेरियन हैं और हम सब खाते हैं ऑलमोस्ट, बट वो तो है ना इंडिया में वैसे भी हाँ। beef का। It depends also where you're from. Like I think most North Indians don't eat beef, and if you go to like Kerala, beef is like staple diet. मतलब beef नहीं है पार्टीज में तो लोग गाली देंगे तुमको, बेंचो beef तो नहीं है ओके। ऐसा। नॉर्थ इंडिया में बहुत अवॉइड करता है बहुत ज्यादा इस गोवा साइड। में है काफी, गोवा में मिल जाएगा। मेरी ऐसे रैंकिंग बन रखी है, प्रॉन्स, कौन सा फर्स्ट? मटन, चिकन एंड देन फिश। नहीं, मेरा लाइक आई फॉर मी आई थिंक बीफ टॉप्स द चार्ट, एंड चिकन पसंद है मेरे को, बट आई गॉट बोर्ड ऑफ इट, खा खा के थक गया चिकन। नाउ आई लाइक सी फूड अलॉट, तो लाइक हम्म। beef, seafood, and chicken probably, and eggs. So I don't think it counts, but I eat a lot of eggs also. लोग पे जोक नहीं कर सकते तुम, पतले लोग पे जोक नहीं कर सकते तुम, गेस पे जोक नहीं कर सकते, तो करे क्या बे, किस पे करें? कॉमिक है अतुल खत्री करके, नाम सुना? एंड उसके शो में ये लोग गए थे एंड ही सेड समथिंग, एंड उनका जो ग्रुप था, दे जस्ट climbed on the stage and laughed and slapped Atul Khatri. And the justification was that he was talking shit about something they believed in. So how the fuck is Atul Khatri going to know that we believe in this shit? And even if he's talking shit about it, he's a comic. There was a disclaimer that this is a comedy show. You should have known that before what buying your fucking tickets. Now, people can get offended at anything, but I also think that as an artist, you should not care about it. तुम offend कर रहे हो तो करो, because being offended is someone else's like right. Everyone has the right to be be offended, but तुम किसी को मारने जाओगे, then you are probably a psychopath. ये रिसेंटली बहुत ऐसे वो स्कैंडल्स हुए थे रिसेंटली कॉमेडियंस के साथ, दे वर गेटिंग डेथ थ्रेट्स एंड बहुत सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग स्टफ हुआ था बीच में। ऐसा लगता है कि पहले ऐसा लगता है कि देयर वाज ओनली वन साइड हु गॉट ऑफेंडेड, लाइक पॉलिटिकली जो राइट लीनिंग है, मतलब जो ऐसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स वगैरह जिनके हर्ट होते हैं, फर्स्ट इट वाज ओनली दैट साइड गेटिंग ऑफेंडेड, बट नाउ इट्स लाइक there is everyone is getting offended, even the people who call themselves liberal or left leaning, ये LGBTQ ally जो भी बोलते हैं अपने आप को, but they are also as equally participants of being offended, because you can see that
कि तुम अभी एक जोक जैसे डेव शेपेल का नाम सुना है तुमको? नहीं. So he had a special on Netflix when he was joking about transgenders. The whole left media got offended. Like, how can he joke about transgenders? They are already a minority. वगैरह. Like, it's a joke. Like, if you want transgenders to be accepted, then there are jokes being made on men. There are jokes being made on women. So there should be jokes being made on transgender as well, and that's how you get accepted into a society, right? Equality तो उधर भी होनी चाहिए ना कि तुम jokes भी कर सको उनके में. Yeah, this Just makes because sense. you are a minority doesn't mean jokes can't be made on you, and that's how you get accepted. अगर तुम्हें protection चाहिए हमेशा, then you're just trying to play victim and reap the benefits of it, right? Reap the benefits of it. आजकल लोग मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ही वेले हैं. They just don't have any work. And they go on social हाँ, media and bitch. And troll. Yeah. which is true. And just send this shitty death threats to comedians. और या कुछ भी किसी ने कर दिया, कोई सैंडल कर रहा है बॉलीवुड में, उस पे they start talking about ऐसे नहीं, हम भी गॉसिप करते हैं. But it's just that कि वो उतना ही रहता है, like 5 मिनट की गॉसिप. ओके, वो ये हो गया, इसने इसको कर दिया, तो that's all. हम मतलब ऐसे कोई we don't even build up a space हमारे दिमाग में कि वो नेगेटिवली इफेक्ट करे. बट हाँ, काफी लोग बहुत पर्सनली ले जाते हैं. काफी लोग, मेरे को उसका कोई पॉइंट समझ नहीं आता. भाई तुम इससे बेटर अपना काम कर लो जाके. True. हाँ, exactly. Like, if you don't like it, don't watch it, don't promote it, don't like, share, subscribe. बस मत देखो. Simple as that. But होता नहीं है ना लोगों से. They have to take offense. They have to like. I mean, I think a lot of that plays into the fact that कि जो तूने बोला कि लोग नवरे हैं, they need some kind of stimulation, and hatred is the easiest way to stimulate yourself and feel good about yourself. True. By speaking ill about someone else. Mhm. And Twitter, Instagram, social media has given you the platform to किसी को भी गाली देने का विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंस. तुम मुंह पे किसी को गाली दोगे, देयर इज कॉन्सिक्वेंस. वो तुम्हें मार सकता है. देयर समथिंग, एनीथिंग कुड हैपन टू यू. लाइक these same people who are like spewing shit on you on Twitter and Instagram, if you meet them in person, they are really nice people. They won't do that in person. It's just कि when you can just hide behind egg वाला icon ना, Twitter पे जब लोग नया अकाउंट बनाते हैं तो egg वाला icon आता है. And you can just hide behind that and say whatever you want or say shit. I think everyone should be allowed to say whatever they want, but saying shit without the consequences. मतलब Twitter is like कि तुम किसी को भी Twitter पे बोल सकते हो, और it doesn't have to be nice. And people can also say that to comics as well. Like, your jokes should have consequences as well. And है consequences. कौन बोलता नहीं है? You're just making jokes which are not funny, which can get us cancelled, but we are ready to take it. Most comics are, at least I know. Some jokes has been really, like I say, I have some jokes that I have made on religion and everything. So हाँ, होता है. लोगों ने गालियाँ दी है, पढ़ी है मेरे को भी. Even on stories, sometimes I said offensive shit and I काफी inbox में गाली पड़ी है. But inbox में ही पड़ती है ना, मुंह पे तो नहीं पड़ रही. हम तो कहेंगे, हम तो करते ही नहीं है. We are like, we always play safer. हम करते ही नहीं. हाँ, we always are on safer side. But is it fun playing safe? I don't know. She don't like talking about politics. She's not interested into. I am, but मेरा ऐसे कोई specific opinion बचा नहीं है, to be frankly honest. Like when I used to heard in like my household, so मेरे household में ना एक specific party है, उसी को they just brag about it. So when I was used to be a kid before 12th, I used to also try to explain people, the people that hate that party and stuff. So I tried to explain them. But once this realization hit me कि the girl that I was explaining to, she hates that party. So she was just like बहुत बकवास बोल रही थी वो. तो आई वाज लाइक, मैं उसे समझा रही थी. फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं क्या करूंगी समझा के. एवरीवन हैज अ गुड साइड एंड अ बैड साइड. सो किसी को तुम ऐसे ही आंख बंद करके शिप नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वो ऐसे ही प्रेजेंट हो रहा है तुम्हारे सामने. एंड व्हाट इफ लाइक आवर मॉम डैड इज टीचिंग समथिंग व्हिच इज नॉट राइट और करेक्ट. सो आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, आई स्टार्टेड नोटिसिंग. Now I'm neutral. I don't give a shit. I'm like, okay, on humanly basis किसने क्या सही किया, क्या गलत किया, उस पे है. And then I made an opinion on that. And then I just, yeah, that's all I do. ऐसे ही मेरा perspective change हुआ है बाकी चीजों को लेके भी, क्योंकि पहले मैं भी बहुत offended हो जाती थी, personally ले जाती थी. but अब थोड़ा जब दिमाग आया तो I'm like कि नहीं, इसमें मैं
क्या करूंगी ऑफेंड कर लेके, क्या मेरे को नहीं बोला है, या मेरे को भी अगर बोला भी, मेरे को भी बोला होता तो क्या करूंगी, बोला है तो बोला है। नहीं राइट, क्योंकि इट्स एट वन सम मोमेंट यू जस्ट रियलाइज कि मेरे पास सिर्फ इतना लिमिटेड एनर्जी है एक दिन में स्पेंड करने, तो मैं अपने काम पे करूँ ना, और अपने दोस्तों पे करूँ, अपने घर वालों पे करूँ, ट्विटर पे कौन बक रहा है उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है। हाँ मतलब समटाइम्स दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ योर वर्क, यू टॉक अबाउट दिस शिट ऑन योर पॉडकास्ट एंड योर कॉमेडी साइट्स, लाइक माय वर्क इज दैट इट अलाउज मी टू डू इट, बट yeah, also you have to know that the thing called opinion is that changes, that keeps changing. तुमने एक ओपिनियन बना दिया 20 साल की उम्र में, शायद 22 के हो जाओगे तुम, तुम्हारा वो ओपिनियन चेंज हो जाएगा। एंड मेरा काफी बार ओपिनियन चेंज हुआ है। एक्सेप्ट इट कि तुम गलती कर सकते हो, तुम ह्यूमन हो, तो कोई भगवान थोड़ी बेंचो कि तुम सब चीज सही बोलोगे। एक सेकंड में चेंज होता है ओपिनियन और कुछ भी। एंड वो होना भी चाहिए ना, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग योर ओपिनियंस आर शुड बी अलाउड टू ग्रो। You're not associated to, you're not married to your opinion. अगर तुम वो नया पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करके तुम्हारे ओपिनियन में उस हिसाब से चेंजेस नहीं ला सकते, then probably you have a very rigid mindset and that's not good for anyone. That's not good for you, that's not good for people who are with you. The people who take things seriously, like movies and stuff, and they do shit according to that, like movie देखी, अच्छा movie में ये होता है, तो they do according to that. I don't know what to say to those people, because just roll them a joint and smoke with them. That's what I would say. If if you find people who are like very uptight, and एक joint roll करके जाओ, just light it up, 10-15 minutes, smoke with them, सब ठीक हो जाता है। I'm not actually advising you to do this, but this pretty much works. I mean, like, like I know quite a lot of people who are like very very uptight, like okay, ऐसा चीज ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा ही होता है, and like couldn't chill in life, right? And once like some or the other way, they just got introduced to weed, and then like pretty much chill, like they don't worry that. Also, I thought like I did not chill enough. And like somehow I just got introduced to weed, and then wow, ये तो बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे भी अभी पता चला रिसेंटली। मैं ऐसे फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, आई वाज लाइक ओके, तूने ट्राई कर रखा ना? हाँ, she used to say it's better. अब तो अच्छा होता है अब तो and it's also healthy, so ऐसा तो नहीं है, it's not healthy. Just taking and smoke, what is this तो वो सिगरेट से ज्यादा हेल्दी नहीं है जॉइंट? यार हेल्दी तो देखो शुगर खाना भी नहीं है। नहीं मतलब like not in that way healthy, but नहीं, it's not much difference. I mean, there's no tobacco, and like there's not that much tobacco. Like even if I smoke, I mix a little bit of tobacco because I like the taste of it. And tobacco नहीं है उसमें, so in that way it's healthier. Is tobacco थोड़ा खराब होता है, it's called perspective से, but still you're inhaling smoke ना into your lungs. If there's an easier way to get it, like if you could just make an edible, मतलब तुम एक brownie cake बना सकते हो, so it's much better and it is I think safe also, but you know, edibles मेरे लिए काम नहीं करते। I have something called Eddie block. अगर मैं edible खाता हूँ तो वो सब बहुत जल्दी पचक जाता है मेरे digestive system, तो मेरे को high नहीं होता। But when I smoke, it goes to my lungs and तो मेरे काफी high होता है। But हाँ, your lungs are affected. But I enjoy smoking, so I also make sure that I go for work. So I work out and go for run. So like that's my reward system. 6 किलोमीटर भाग पे एक जॉइंट फूकने का। मैं रिसेंटली गया था बारिश में तो बहुत ही मजा आता है भाई साहब। बस इतना ही बोलना था। तुम लोग की फटी पड़ी है ना अभी। ठीक है, बता दो। मैं तो बोलता हूँ आज घर पे लास्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। एक काम कर, मैं बताती हूँ लास्ट डे ऑफ यू कमिंग होम। नहीं, तेरे घर पे नहीं बताने, मैं अपने घर पे बताऊंगी कि मैं तेरे घर आके रहूंगी। या तेरे घर से हम दोनों को ही निकाल देंगे। कहाँ रहेंगे हम? सही बात है, फालतू नहीं घर पे जाएंगे। हाँ ठीक है, बता दो घर पे जितना जल्दी बता, फिर क्या है, कोई गिल्ट नहीं है। गिल्ट तो नहीं है, फिर नो बाहर भी जाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, गिरना चाहते हैं। नहीं, मेरे को नहीं लगता कि इतना बड़ा कुछ कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। I mean, नहीं एक पॉइंट के बाद तो like they also know कि तुम लोग करते ही होंगे ये सब चीजें। I don't think they don't know. Just the parents don't tell you कि they know that you do all this shit, but they kind of know. ऐसा है, मतलब there's I don't know. I used to lie a lot like when I was a kid. It just I became very good at it as well. And then I just started feeling guilt. मतलब ये तो like मैं अलग स्टोरी बना दिया पूरा अपना झूठ बोल के। मैंने एक बुक पढ़ी थी lying by करके, it was by Sam Harris, the scientist, how much lying affects you, and इफेक्ट तो होता ही है। घर पे बता भी दोगे तो मे भी एक हफ्ते तक तो मैं ऐसा
घर वाले अलग नजरे से देंगे, तो मैं घर से तो बाहर नहीं निकालता। तेरे को भी गिल्ट होता है ना? हाँ काफी होता है, या मतलब काफी होता है जब मैं ऐसे झूठ बोल के जाती हूँ या फिर जब मैं ऐसे करती हूँ तो मैं ऐसे मम्मी पापा। बट अब मेरा टू बी फ्रैंकली ऑनेस्ट आई एम बहुत ज्यादा स्टबर्न हो चुकी हूँ, मेरे को लड़े का फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, छोड़ो ना, मजे कर लो। सो हाँ, वैसे पता तो चल रही है किसी ना किसी दिन तो। मैंने भी बचपन में यही किया है, जब मैं कुछ गलत करती थी मैं रोने लग जाती थी, और मैं बहुत गंदी तरीके से रो सकती हूँ, तो मैं बहुत गंदी तरीके से रो रही थी, और फिर मम्मी डैडी यूज्ड टू बी लाइक पहले तुम रो लो। नहीं, और मैंने बहुत ज्यादा क्राई भी हूँ भी, कहना नहीं चाहिए मुझे अपने बारे में, बट मैं थोड़ा है मेरा ऐसा। सो लाइक एवरी टाइम समथिंग हैपेंस माय होल फैमिली इज लाइक वापस रोना शुरू, तो वैसे हाँ रोंगी, मैं रोंगी, छुपाती तो नहीं हूँ मैं, तो फिर मैं रो देती हूँ। आई फाइंड इट बेटर एंड नहीं, इजियर। अच्छा है, like I find it difficult, I hardly cry, तो मेरे को तो ऐसा बहुत ऐसा अजीब ही लगता है रोना। खाना को बेची लगता है। हाँ मैं नहीं रोती किसी सामने, बाथरूम क्राई इज बेटर। तो और जब ऐसे सबके सामने, मतलब ऐसा नहीं होता तुम कंट्रोल कर रहे होते हो अपना आंसू, अंदर कंट्रोल कर रहे होते हो, सामने वाला बंदा है कहता है नहीं रो ले तू तब और ऐसे ऑकवर्ड हो जाता है कि क्या ऐसे, नहीं बस आंख से पानी आ रहा है, मैं रो नहीं रही। सो हाँ, बाथरूम क्राइंग इज बेटर, बहुत बेटर। लेकिन बहुत खराब लगता है तुम्हारा शक्ल जब तुम रोते हो तो। मुझे कितना काफी खराब। So once my dad seen me drunk, दिवाली थी, नीचे हम लोग ऐसे, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड, अब लाइक उस दिन ना माय फ्रेंड डिच्ड मी, मैंने इसे भी कॉल करके मैं रो रही थी। I was like, my friend ditched me. She is with boy. I'm drinking alone. What to do? I was literally crying. तो वो बंदे के साथ थी ऊपर, और मैं बहुत, मेरे को गुस्सा आया, मैं गई भाग के उन लोगों ने बॉटल पकड़ ली थी, मैंने उन दोनों के हाथ से बॉटल छीनी, मैंने कहा मैं पी रही हूँ, तुम दोनों अकेले रहो। एंड देन मैंने फिर वो पूरी चढ़ा ली। उसके बाद मैं नीचे गई तो मेरे पापा गुस्से में, तो मेरे पापा गुस्से में निकले लिफ्ट के पास, मैं सीढ़ी पे आ गई, मैं ऐसे थी, पापा को तो स्मेल आ चाहिए, पापा कह रहे कहाँ जा रही हो, मैं ऐसे नीचे, आप भी आ जाना। तो उसके बाद फिर मैं फर्स्ट फ्लोर पे गई और मेरी फ्रेंड निकली और वो चीखने लगी, निकली है, वो चीखने लगी, वो चीख रही थी, और फिर ऐसी थी चुप हो जा। फिर हम नीचे गए, उसके पापा मिल गए, अंकल ने देख लिया हम चल नहीं पा रहे, मैंने सीधा मैंने कहा सीधा चल। अंकल कह रहे कहाँ से आ रहे हो, मैंने कहा बस ऐसे ही घर से आ रहे हो। और फिर मेरे पापा लिफ्ट से नीचे आ रहे थे, भाई दोनों के पापा इधर से, उसके पापा इधर से, मैंने कहा यार चल डांस करने चलते हैं। I once went out with my office people, हम लोग सब दारू पीने गए, एंड पता नहीं मैंने तो बहुत कुछ मिक्स कर दिया था उस दिन, तो खाना भी खा रहा था, जैसे ईटिंग तंदूरी चिकन वगैरह खा रहा था, चिकन टिक्का खा रहा था, दारू हुक्का सब मिक्स हो गया, बियर विस्की एवरीथिंग, एंड देन आई रिमेम्बर लाइंग डाउन ऑन अ चेयर। उसके बाद मेरी आँख खुली, मतलब लिटरली माय फेस वाज इनसाइड अ कमोड, कर रहा था बस puking whatever I ate, कि मतलब ऐसे I was on my knees bathroom में, someone looked from outside, is like why am I giving blowjob to someone in a bathroom, that's how it looked like, and बहुत खराब लगता है because you can't control yourself, and as in like पूरा डिहाइड्रेट हो जाता है तुम्हारा बॉडी बिकॉज ऑफ अल्कोहल, सो हाँ ये समवन तो हैज है टू ही। लाइक पिक यू अप, गेट यू टू अ कैब, और फिर वहां से कैब से उतर के तुम्हारे रूम तक भी जाना होता है। बट आई हैव अ ट्रिक नाउ, बस बहुत सारा पानी पी लो, जिस दिन तुम दारू पीने वाले हो, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, फिर ऐसा कुछ होगा नहीं। और अच्छा भी लगता है उल्टी करने के बाद, बहुत बेटर फील होता है। बट लाइक आफ्टर आई डिस्कवर्ड लाइक द ग्रीन पार्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, मेरे को दारू का उतना ये नहीं रहा पहले। दिस इज मच बेटर, कोई हैंगओवर नहीं, कुछ नहीं, 2 घंटे में सब उतर भी जाता है। मैंने मतलब बीच में मेरा ऐसा हो गया था कि मेरे को अल्कोहल ऐसे, मतलब मैंने इतना, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि बहुत ज्यादा कर लिया था, बट इतना अमाउंट में हो गया था कि मैं ऐसे थी कि अब फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है पी रहे नहीं पी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने छोड़ दी थी ऐसे बीच में कि नहीं, मेरी एंग्जाइटी ऐसे बाद अगले दिन बहुत ज्यादा बुरी हो जाती थी, तो आई वाज लाइक फक ऑफ, तो मैं करती नहीं थी फिर। ऑल्सो लॉजिस्टिक्स भी कितना कम है ना, लाइक इफ यू स्मोकिंग वीड, ऑल यू नीड इज अ जॉइंट, तुम्हारे पॉकेट में भी आ जाएगा। दारू करना है तुमको, ग्लास चाहिए, पानी चाहिए, आइस चाहिए, एंड हमने जस्ट तो पूरा बियर कर सेटअप दो कर तो रखा भी। है। शिट बहुत मजा आता है वैसे तो, स्नीक आउट करके जाना। हाँ, मतलब वो there's a thrill in that ना, that adds to the fun। थ्रिल नहीं है तो फिर मजा भी नहीं आता, हम लोग इसीलिए अपने तो माँ बाप का स्कैरी स्लीप चीजें। पैटर्न्स नोटिस करते हैं प्लान बनाने से पहले, कि 4 बजे एग्जैक्ट मम्मी उठती हैं, उससे पहले घर के अंदर, एक बार मैं घर के अंदर ही, मम्मी कह रही क्या कर रही है बाहर। मैंने कहा हवा अच्छी है।
मेरे को बेवकूफ समझ रखा है तुमने, क्या कर रही है तू बाहर इतनी रात को। मैंने कहा, और लिटरली मेरे फोन पे कोई था, मैं ऐसे मैं ऐसे अच्छा, मम्मी कहते अभी तू बेटा रुक, कल पापा को बताती हूँ, तो कल कुछ पाई तो बच गए। भाई आपने किया होगा फिर कॉलेज लाइफ में। नहीं, मैं यहाँ पे जहाँ रहता हूँ वहाँ पे अल्कोहल लीगली नहीं, यू कैन लीगली बाय अल्कोहल, ओके। इलीगली खरीद सकते हैं। 22 23 तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसे, बहुत स्टूडियस काइंड ऑफ, नॉट स्टूडियस ऐसे, लाइक आई न्यू आई हैव अ वेरी एडिक्टिव ऐसे। हाँ, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा पर्सनालिटी बहुत एडिक्टिव है जो है, तो ऐसा कि अगर मेरे को दारू पसंद आ जाए तो मैं रोज वही करूंगा, तो मैं अपने आप को थोड़ा ऐसे दूर रखता था। विद दिन आफ्टर पॉइंट लेके कर लेते हैं, मैनेज हो जाएगा। फिर उसके बाद किया 23 के आसपास। अच्छा, मेरा भी ऐसे ट्रेट है, ऑब्सेसिव ट्रेट है। अगर मैं एक चीज करने लग जाऊँ ना तो मैं एक ही चीज करती रहती हूँ पूरे उसमें एकदम जोश से। बट मैंने हैंडल कर लिया ऐसे, मतलब अब मैं ऐसे होती हूँ कि मेरा मतलब ऐसे एक मैंने रूल बना रखा है कि जब भी मैं सैड हो रही हूँ या फिर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ या बहुत ज्यादा ऐसे ब्रेक डाउन टाइप्स हो रहा है, मैं तब नहीं करती। आई ओनली ड्रिंक व्हेन आई एम हैप्पी, बिकॉज मेरे को पता है कि 24 घंटे तो मैं दुखी रहती हूँ। फिर आई विल टेक दिस एज अ समथिंग विच इज कोपिंग मैकेनिज्म ले लूंगी फिर मैं ऐसे तो। हाँ, हाँ, मेरे और मैंने से काफी लोगों को देखा भी है और मेरा ऐसा ट्रेट भी है, तो आई नो, तो कितना भी मैं रो, कितना भी ब्रेक डाउन हो, आई डोंट टेक अल्कोहल। मैं रोना प्रेफर करूंगी, मैं हेडेक्स प्रेफर करूंगी इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज मुझे पता है। hey, it's actually very smart because all mostly anyone who abuses these kind of things, they start using it as a coping mechanism. People use and overuse drugs when they start using it as coping mechanism essentially. If you're not using it in that purpose, तो अच्छा है, क्योंकि तब वो एडिक्टिव होना कम हो जाएगा। रखना ही नहीं है ना ऐसी कोई चीज, हाँ, क्योंकि काफी तुम्हें जब प्रॉब्लम्स कम नहीं है। खराब लग रहा है तो बेस्ट है कि सो जाओ, आठ हम्म। 8 9 घंटे सो जाओ। सोने के बाद सब अच्छा लगता है, नींद पूरी हो जाती है। सोने के बाद और खाने के बाद। हाँ, बट फूड should also not be used in a coping mechanism. नेगेटिव हाँ, इमोशंस जब आ रहे होते हैं तब आई ऑल्सो यूज वर्किंग आउट एज अ वे टू रिलीज दोस इमोशंस फीलिंग्स एंड स्ट्रेस। हाँ, ऐसे बोलते भी है कि when you're angry workout, और because सफाई भी हेल्प करती है, मैं सफाई भी करती हूँ उस टाइम। काफी एनर्जी चला जाता है, फिर तुम इतना थक जाते हो कि अब गुस्सा किस पे करे, है ही नहीं, बचा ही नहीं है कुछ। आपका क्या ओपिनियन है इसके इनसिक्योरिटीज के ऊपर ऊपर? क्या होती है आपको इनसिक्योरिटीज? मेरे को अभी तो बिल्कुल है नहीं, मतलब है ज्यादा नहीं है। I'm pretty much over my insecurities. ओवर कैसे मतलब होता है? basically essentially जो मेरी insecurities थे, it was about how I look and like मेरे को ऐसा कभी मोटा रहना पसंद नहीं था, but I used to be fat. तो वो एक insecurity था which I solved. So, अभी वो तो नहीं होती। And then yeah man, to be honest I don't have any insecurities right now, apart from the fact like how my work other people will take into account. But what I do is I try to rationalize stuff by writing it down. मतलब मेरा सुबह I sit with my pen and book and write for 10 minutes. Basically I just do journaling, और जो भी thoughts आ रहे, जो भी मेरे वैसे लग रहा है कि insecurities, I write it down. And when it's on paper, you read it again, you feel like कि ये तो क्या बकचोदी है, मैं फोकट में मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। Writing and journaling has helped me with handling my insecurities. Apart from that, working out, going for run, any kind of physical activity helps. हाँ यार, नहीं है, I'm sorry, मेरे को insecurities नहीं है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही उसमें क्योंकि इनसिक्योरिटीज का क्या है, आपकी एज का था हमें पता नहीं कि वहां पे आके कैसे लगता है। हमारी एज में जब स्कूल में थे तब तो सभी की होती थी। तुम्हारे हाँ एज पे तो थी मेरे को, हाँ I'm not saying कि नहीं, हाँ हाँ। अभी नहीं है। एंड तब मेरे पास कोई कोपिंग मैकेनिज्म भी नहीं था उसका। आई थिंक मतलब आई जस्ट ट्राई टू कवर माई सेल्फ अप, मतलब कि नहीं बता, एक्सप्रेस नहीं करता था चीजें वगैरह वैसा। like if I knew all kind of these things like working out helps or these kind of helps, like what has helped me, that is only what I can tell you. आई थिंक फिर इस So that एज में हम काफी ब्लेस्ड फील कर सकते हैं क्योंकि हमें काफी कुछ पता है, जैसे हम खुद भी जर्नलिंग करते हैं हम्म। और टॉक्सिक वेज में जाने की बजाय हमें पॉजिटिव चीजों के बारे में पता है। और इंस्टेड ऑफ जैसे कि पहले तो यही होता था जब हम छोटे थे, थोड़े स्कूल में थे, तब यही था कि अपने तक रखना, किसी को बताना नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी फील अशेम्ड अबाउट इट एंड व्हेन यू विल टॉक इट आउट यू विल फील मोर एम्बैरेस्ड। और ऐसा भी है कि इनसिक्योरिटीज का पहले जो भी मेरी इनसिक्योरिटीज थी, अब जब से मैंने वर्कआउट करना शुरू किया उसके बाद मैं उन पे ओवर हो गई एंड आई हैव न्यू वन, सो आई हैव रियलाइज्ड इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल इफ आई जस्ट डोंट एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड
रियलाइज की हाँ भाई मैं ऐसी ही हूँ, ऐसी रहूंगी मैं, और like besides the toxic and bad parts about myself that I can change, उनके अलावा तो मैं ऐसी हूँ ना, तो उनको कोई चेंज नहीं कर सकता, और there is no point. Insecurities वैसे if you zoom out and look at it, वो कभी जाने नहीं वाले. You just learn how to live with them and handle it. हाँ, है तो क्या करें, माँ चुदाए, है तो है ऐसा. It's basically that where you just stop giving a fuck about it. Yeah. वो धीरे धीरे वो नर्वसनेस एंजाइटी चला जाता है. लाइक अब फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोच रहा है. The difficult part of stand-up is just getting comfortable on stage and speaking what's in your mind. Stand-up is really, and any kind of public speaking is very helpful. Not just stand-up. कुछ भी करो. Podcasts are also very helpful. Talking to people in general is very helpful. ये तो है, जब से कॉलेज खुला है, उससे पहले तो कोविड था तो हम लोग तो घर पे ही थे. जब मेरा 4th सेमेस्टर में खुला कॉलेज, उसके बाद आई वाज लाइक ओके दिस इज दुनिया. तो उससे पहले मैं बहुत शाय थी, मेरे को सोशल एंग्जाइटी भी थी, बट फिर जब मैं गई एक्चुअली बाहर, आई रियलाइज कि मेरे को उतनी ज्यादा सोशल एंग्जाइटी भी नहीं है. ऑनलाइन वो एकदम ऐसे पीक पे आ गई थी, और काफी चीजें मैंने सीखी, और सीखी भी नहीं तो मैंने रियलाइज किया कि जितना मैं सोचती हूँ वो बहुत ही लिमिटेड है. बहुत ही वेराइटी ऑफ ओपिनियंस एंड डिफरेंट चीजें हैं जो मैं सब कुछ नहीं सोच सकती हूँ. Plus, this social anxiety thing is very common now. After the Jio का जब revolution आया ना, free internet वाला, everyone is so used to talking on internet and stuff. Like even I see like काफी comics है जो बहुत young है मेरे से, like 19, 18, and I see them so much active on Instagram and talking to people. Like they have a different life on internet, which I do not relate to at all because growing up मेरे लिए कोई internet जैसा चीज था नहीं. Came very later. So as you can see that like they are very socially anxious. लोगों से बात करना, like अगर बाहर जैसे this thing called barking. शोज कभी कभी होता है कि कोई है ही नहीं, टिकट ही नहीं कट गई है हमारी, तो हम शोज के बाहर जो लोग चल के जा रहे होते रास्ते पे उनसे जाके बात करते हैं. उनको बोलते हैं कि पिच करते हैं कि यहाँ पे शो हो रहा है, तुम लोग आके बैठ जाओ. उसको हम बार्किंग बोलते हैं. A lot of these comics are comfortable on stage, but when I ask them to go and talk to random people, so they're like कि लड़कों से बात कर लूंगा बट लड़कियों से नहीं बात कर सकता वैसा. So this internet has also that part where like people are not really, they don't know how to talk to people face to face. इनसिक्योरिटीज का तो मेरे काफी थी, काफी अभी हैं भी, बट अब मेरे को जैसे वही कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता. यू जस्ट गेट ओवर इट एंड यू हैंडल इट. और अब मेरे को पता है कि ये इनसिक्योरिटी है तो उसका यही सॉल्यूशन है. मैं नहीं कर रही हूँ, और अगर मैं कंप्लेन कर रही हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट? फिर मैं कंप्लेन करूँ ही ना आई एम नॉट वर्किंग थ्रू इट. और हाँ, जर्नलिंग ऑलवेज वर्क्स. जर्नलिंग तो सबसे बेस्ट रहता है. जब भी कुछ हुआ जर्नल कर लो. और स्पीकिंग का तो मैं ऐसे बात कर लेती हूँ, मैं हूँ एक्सट्रोवर्ट, बट वही है कि अगर तुम डीप कॉन्वर्स कर रहे हो जिसमें थोड़ा ऐसे रोने का हो जाता है या फिर कुछ कैसे बोलने का है, आई थिंक वो काफियों के लिए हार्ड पार्ट होता भी है. Yeah, I have the same thing. I don't like to talk about things that are affecting me or emotional kind of. मैं तो क्या ही बताऊँ, मैं ही देख लूंगा वो तो. That's how I feel about it. I'll handle it myself. But honestly, that is not the right way every time. Sometimes it is, but not every time. With thought about that, I'm trying to figure out how to like get used to talking about personal, emotional stuff to people. I think I'm kind of a very loner kind of person. I spend most of my days just working on shit and alone. Like where that's how my routine I have programmed it to be that way. So if कोई है भी नहीं तो भी I don't mind. I can just spend a lot of time alone. I just put focus on work और do भागने चला जाता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ या टेरेस पे चला जाता हूँ, जॉइंट फूक लेता हूँ. टाइम तो मेरा निकल जाता है. But like when I'm with people and people start talking about emotional shit and then they expect you to do, you also open up, and that's where I'm like, hey, you open up, that's fine. मेरा तो चलेगा, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम दोनों को तो यही रहता है कि हम दोनों अभी लाइक हमारी जो दोस्ती है वो काफी टाइम से है, 11 साल होने जा रहे हैं. अब हम लोग रिसेंटली ओपन अप हुए हैं एक दूसरे से, बट अभी भी हमारी ऐसी फट सी जाती है जब ऐसे कुछ डीप कॉन्वर्स हो जाते हैं. कल रात ही कर रहे थे हम लोग किसी बारे में. कल रात था कि परसों रात था. तो ताना बोले जाके रोना नहीं है, देखो पता चल गया होगा मैं रोने वाली हूँ. हाँ, अब हमें पता चल जाता है एक दूसरे का ना. पहले मैं बता रही थी, फिर ये ऐसे नहीं तू बहुत ज्यादा इमोशनल है, कल बात करते हैं. मैंने कहा नहीं यार अब तू बता ही दे क्या क्या चल क्या रहा है. फिर इसने बताया, मैं इसे समझा रही थी. फिर हाँ मतलब अब हमारे लिए तो काफी आसान हो गई हैं चीजें, बट अभी मैं एक दूसरे के साथ, वही सिर्फ एक दूसरे के साथ. बाकी तो कोई और बंदा रहे तो मैं तो ऐसा मेरी तो ऐसा लगता है बॉडी रिस्पॉन्ड करने ही बंद कर देती है.
जब कोई सामने से पूछता है ना कि क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे अंदर से आवाज ही नहीं करती, मैं कैसे बताऊं, क्या बताऊं, बताओ। But I just want to ask you guys this. And like, I don't want to stereotype or anything, but like, is it easier to talk about as a emotional shit as a woman? Because I find it very difficult as a guy, and even in my friend circle, it's everyone like this. But when I like meet other women, and they're काफी easy है उनके, वो लोग ऐसे काफी easily बात कर लेते हैं उसके बारे में. ऐसा kind of make me feel very envious about that they have that quality to do it. I don't know. But probably it's like upbringing of guys in that way कि मतलब सर वो मत वाला. मैं इसमें एक और कहना चाहूंगी, जैसे मेरे को बाकी लेडीज का नहीं पता, जैसे मेरे घर में 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं. आई हैव एल्डर सिस्टर एंड younger brother, then my father and mother. So with my mother and I, we both have been very kind of, just saying what we are feeling and crying at the moment and being like, मुझसे नहीं हो रहा, मेरे को भी रोना है. And then there's my father and sister. They both are like very quiet people and they just don't easily open up and share what they're feeling. And then there's my brother. He's 15 or 16. So वो like हम उसे कभी भी रोने से मना नहीं करते. आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट ही क्राइज इन फ्रंट ऑफ अस एंड जब पानी फिर से ऊपर चल जाता है वो बोलता है कि मेरे साथ ये हो रहा है. तो आई रियली अप्रिशिएट दैट कि हमारे घर में ना कोई भी उसको ऐसे नहीं कर रहा है कि तुम्हें बताना नहीं है कि तुम क्या फील कर रहे हो. तो आई थिंक ये ब्रिंगिंग में भी है और आपकी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है एक तरीके से. आई थिंक लाइक दैट्स माय ओपिनियन. मेरा ओपिनियन तो यही है कि मेरे घर में तो मैं अपने पापा पे गई हूँ, तो माय फादर डजंट स्पीक अप, ही नेवर एवर लाइक टॉक लाइक आई लव यू नहीं बोला, बर्थडे विशेस नहीं करते, ही जस्ट डू शिट एज अ फादर, जो टिपिकल इंडियन फादर्स होता है ना. तो मैं उन पे गई हूँ, तो उनकी काफी क्वालिटीज मेरे अंदर भी है. तो वो हग्स, मुझसे ढंग से हग्स नहीं होते. मैं लड़कियों को देखती हूँ, वो उसकी फ्रेंड सामने रो रही है, दे स्टार्ट हगिंग, मैं इशिता रो रही है, मैं बैठी हूँ उसकी शक्ल देख रही हूँ ऐसे, अच्छा मतलब ऐसा होता है. मैं बहुत ज्यादा ऐसे एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, तो मैं कहना चाहूंगी मेरे लिए तो हमेशा ही मुश्किल था ओपन अप होना. और लड़कों में अगर मैं बात करूं, मेरी जिन लड़कों से बात होती है जो इमोशनल शिट बोलते हैं, मैं जितना ऑब्जर्व किया लड़कों के अंदर ना, उनका थोड़ा ऐसा होता है, उनको थोड़ा ये होता है कि मैं दिखाऊंगा तो मैं कमजोर दिखूंगा. नहीं, ये भी नहीं, Okay. ये भी नहीं मैं कहूंगी कि मैंने जितने लोगों से बात की है, कुछ तो बहुत आराम से बोल लेते हैं कि अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है, ये इमोशनल है. बट जो बहुत ज्यादा स्टबर्न या फिर वैसे होते हैं, वो आई थिंक तब बात करते हैं जब उनके सराउंडिंग उन्हें दिख जाता है कि कंफर्ट प्लेस क्रिएटेड है. क्योंकि इमोशन शेयर करते होते हो और सामने वाला भी सेम ही सफर कर रहा होता है, तो यू स्टार्ट स्पीकिंग अप मोर, तो फिर ऐसे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाती है. और फेस टू फेस तो मैंने की है काफी लोगों से, तो हाँ मुश्किल तो बहुत. तो तेरे तो काफी भाई है ना, तो तेरे हिसाब से लाइक लड़कों में ऐसा क्यों होता है? मेरे भाई बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं, बहुत ज्यादा कूल है मम्मी की साइड से. कुछ हैं एक्सप्रेसिव, कुछ नहीं भी हैं. तो मैं तो ये कहूंगी कि वो बस थोड़ा जोन से बाहर निकल के कोई ऐसा कंफर्टिंग पर्सन है, तो अगर आप बात कर सकते हो तो आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि वेंट आउट इज द बेस्ट, इट फील्स बेस्ट. वेंट आउट मतलब फिर तो एक साथ सब बाहर निकलता है, उससे अच्छा है कि तुम पीरियोडिकली थोड़ा थोड़ा निकालो. हाँ, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे. हम लोगों ने तो ऐसे किया था जब आई थिंक हम लोग हमारा ऐसा सेपरेशन फेज चला था, 1 साल के लिए हमने बात नहीं की थी एक दूसरे से, क्योंकि इसने स्कूल चेंज कर लिया था, फिर वही स्कैंडल्स वगैरह चल रहे थे, तो हमने बात नहीं की थी. फिर हमने एक रात एक दूसरे को कॉल किया, हमने सारे अपने इमोशंस वेंट आउट सब कुछ एक दूसरे को बता दिया. फिर चीजें आसान हो जाती है. अगर आपको लगता है कि कोई वेल डिजर्विंग है जो आपके इमोशंस के बारे में जान सकता है, तो आपको बताना चाहिए. बट वो सामने वाले बंदे पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है. But then how do you judge that कि सामने वाला जो तूने बोला well deserving है to listen to your emotions? How do you judge that? मैं तो टाइम स्पेंड करने के बाद भी मेरे को पता चल जाता है. अगर मैं लड़कों की बात कर रही हूँ, लड़कियों में तो इशिता है, ठीक है, आई हैव अ सेफ पर्सन इशिता. तो लड़कियों में तो मेरे पास एक है ऐसे बेस्ट फ्रेंड जो रहती है लड़कियों की. बट अगर मैं बंदों में बात करूँ, तो उसमें भी मेरे पास एक है, बट मैं उससे नहीं होती मेरे से डीप कॉन्वर्स उससे भी. बट हाँ, वो टाइम स्पेंड करने के साथ टाइम स्पेंड करो, पता चल जाता है. मेरे को पता चल जाता है, अब आपको मुझे नहीं पता कैसे होता है.
पता चल जाता है। और अगर तुम उस बंदे को बात बता रहे हो और वो जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है तुम्हें बेटर फील हो रहा है, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है तुम्हें बेटर फील हो रहा है। कभी कभार वो लोग फेक रिएक्शंस भी देते हैं और तुम्हें लगता है कि और बट तुम्हें वो बंदा बहुत अच्छे से बोल रहा है कि ओ आई एम रियली सॉरी दैट हैपेंड टू यू, बट अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है। और अगर कोई ऑनेस्टली भी बोल रहा है कि नहीं तूने गलत किया या फिर तेरे साथ ही गलत हुआ या ये तेरे साथ होना ही नहीं चाहिए था और वो थोड़ा ऑफेंडिंग है तुम्हारे लिए बट तुम्हें बेटर फील हो रहा है, तो आई थिंक हाँ जब उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, मतलब किसी भी इंसान के साथ उस इंसान के साथ, तो उनके बारे में जब पता भी चलता है, देन यू ऑल्सो गेट टू नो हाउ दे थिंक एंड यू नो व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग। और छोटी छोटी चीजों से ही मैंने तो स्टार्ट की थी यू नो शेयर करना चीजें, नॉट ऐसे कि मैं एकदम बिग जंप ले ली और एकदम ऐसे डीप चीज बता दी, नथिंग लाइक दैट। तो धीरे धीरे देखना कि कैसे मतलब ट्रस्ट बिल्डअप करना उस इंसान के साथ कि हाँ मैं जो बता रही हूँ और जो कंफर्ट मुझे चाहिए मेरे को बताने के बाद मिल रहा है, ऐसे मेरे साथ तो ऐसे ही रहा है। ओनली इफ मैं फ्रेंड्स की बात करूँ तो 2 लोगों को ही पता है और एक को थोड़ा बहुत पता है मेरे बारे में। तो धीरे धीरे ही करके मैं आगे बढ़ाती हूँ चीजें। इफ आई फील लाइक कि नहीं यार इसके साथ वाइब नहीं जा रही, मैं जो बता रही हूँ मेरे को जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा, सो आई जस्ट यू नो स्टॉप शेयरिंग एंड बी लाइक नॉर्मल फ्रेंड्स। वाइब करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके साथ क्या होता है इस चीज में? यही ऐसे शेयरिंग अगर आपने कभी ट्राई किया हो? जब भी ट्राई किया कभी ऐसा अच्छा नहीं लगा तो मैंने बंद कर दिया। मतलब अगर आपने किससे शेयर किया था? मतलब मैं ऐसे पूछ रही हूँ बट मैं पूछना ये देखना चाह रही हूँ कि आपने क्या नहीं, मैंने शेयर किया, बहुत मतलब क्या शेयर नहीं इन द सेंस लाइक कि क्या हुआ एग्जैक्टली। है मेरे like I have 2 friends, 2 3 friends to whom I share these kind of things, and that's fine. Like they have been like friends for years now. मतलब स्कूल से साथ में थे, 5 6 साल हो गए तो जानते अच्छे से. That is fine. But I also think that if there is something that you can only share to some people. Some people you can't share this thing, some people you can't share this, right? So मेरा एक ऐसा भी पार्ट है जो मैं इन लोगों की दोस्तों से शेयर नहीं कर पाता, right? मतलब ठीक है, this is gonna sound a little cringy, but like I feel I'm a little old now and ऐसा बहुत हो गया, अब तो तक कोई अच्छी लड़की ढूंढ लेते हैं क्या डेट वेट कर लेते हैं अच्छे से, बहुत कैजुअल वैजुअल खत्म हो गया, अब तो ऐसा बुढ़ा वाला फील आना, तो वो वाला फेज है। तो उसमें किसी को ढूंढना एंड टू शेयर दोस थिंग्स, दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं तुम कितना कितना टाइम किसी को इन्वेस्ट करने वाले हो तो मुझे पता भी नहीं है, फिर अभी बताना है। मेरे को पता है किसी ने कहा था, लाइक वो भी सीनियर है, वो भी 26 27 के है, उन्होंने कहा था कि जस्ट बिकॉज यू हैव पुट इन सो मच एफर्ट्स एंड टाइम, तो ऐसा नहीं है कि अगर चीजें खराब है तो तुम निकल नहीं सकते। तो आई थिंक वो रिलेशनशिप्स में अप्लाई, हाँ वो चीज रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई होती है। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ऐसा नहीं है कि मैंने टाइम और वो कर लिया है और अगर बंदी टॉक्सिक हो रही है तो मैं निकल नहीं सकता। तो उनकी ना बात की मेरे ना दिमाग में ऐसे बैठ गई है, तो मेरे को थोड़ा ऐसे इजी रहता है रिस्क लेने का कि नहीं, चलो सही कर बात लिया है। डेट। नहीं, आई हैव द सेम थॉट, मतलब जस्ट बिकॉज तुम ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो उसका मतलब थोड़ी कि तुम नहीं करोगे, और बहुत एक्यूरेट पॉइंट है। मैं भी वैसे ही सोचता हूँ कि एफर्ट तो डालना पड़ेगा, कोई भी चीज तुम्हें चाहिए, यू हैव टू पुट एफर्ट, यू कांट बी लाइक अरे इतना एफर्ट डाल दिया नहीं मिल रहा नहीं करना, बट फिर तो फिर उतना टाइम भी नहीं है तो किसी के बात में कर लेंगे यार, ये तो अभी है काम ही। पे ध्यान दे, बट फिर वो बाद में आता है काम के बीच में आ जाता है कि अरे इससे बात कर ले, इसके तूने बात करके रखा था, फोन कर लिया, ऐसा लाइक हाउ लॉन्ग टू वेट बिफोर निकलो वाला फेज, ये वो बस तुम्हें जज करना पड़ता है अपने साथ। मेरा तो ऐसे माइंडसेट है, मैं ना आई एम ऑलवेज प्रेफर माई सेल्फ फर्स्ट इन डेटिंग। मैं पहले आती हूँ बाद में रिलेशनशिप। आई डोंट बिलीव इन की वी आर टू हाउस गेटिंग टुगेदर वाली शिट। आई डोंट बिलीव इन वन मैन वुमेन शिट। आई डोंट बिलीव इन। तो अगर तेरे को ठीक लग रहा है कि हम पहले काम करेंगे, पहले हम खुद पे फोकस करेंगे फिर डेटिंग करेंगे, तो ठीक है, वरना तो क्या, मैं हमारी एज ही ऐसे है ना, वी आर 20, वी आर नॉट हियर फॉर डेटिंग एंड ब्रेकिंग अप और रोए पड़े हुए हैं किसी के पीछे। तो अगर मेरे को लग रहा है, दिख रहा है कि शी इज नॉट हेल्पिंग मी टू ग्रो। देखो रोमांटिक साइड तो हर रिलेशनशिप का होता ही है, बट उसको छोड़ के देखना पड़ता है कि इफ ही इज अगर तुम उसके साथ ग्रो कर रहे हो, तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं आ रही करियर में, तुम सिर्फ उसी के बारे में नहीं सोच जा रहे हो, तुम करियर भी फोकस कर पा रहे हो, तो यू आर विद द राइट गाय। अदरवाइज तो नहीं होता। कभी कभार सही लोग भी होते हैं तब भी नहीं हो पाता। तो अभी हमारी एज भी नहीं है, मेरे को जितना लगता है कि बहुत ज्यादा एकदम घुसी जाओ बंदे के अंदर। तो दिस आई कॉल माई फ्रेंड्स लाइक कि गांड में मत घुसो टाइप्स, की घुसो मत किसी की गांड में ना, लेट हिम
take his space and let him do his shit, let me do my shit, क्योंकि वो टाइम के साथ पता चल जाता है। हाँ, होता है ऐसे थोड़ा दुख कि बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा, बट ऐसा नहीं है कि अलोन नहीं रह सकते हैं। तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि हाँ मतलब बेसिकली डील विद योर ओन शिट एंड डोंट डू एनल किसी गाने में। लोगों को आजकल समझ नहीं आता। मेरे गाय फ्रेंड्स दे जस्ट गेट इनटू अ गर्ल एंड देन फिर उनका कट जाता है, फिर वो बहुत रोती है। तो मैं उन्हें बस यही बोलती हूँ कि पहली बात तो तू मेरा दोस्त नहीं है, दूसरी बात क्योंकि माय फ्रेंड्स डोंट डू दिस काइंड ऑफ शिट, और दूसरी बात कि करियर पे फोकस करो ना, पहले थोड़ा करियर हो जाए तो देख लेना, और अगर साथ में चल रहा है तो चल ले आए, नहीं चल रहा है तो इट्स ओके। पीपल टेक दीज थिंग टू सीरियसली। I'll add this to it कि मतलब it's for guys it's bit different as in like I can only talk about men. So men are just not used to like ऐसा attention in general, right? So when they get attention, they are like oh यहाँ से attention मिल रहा है जितना हो सकता है ले लेते हैं and it's true for most men. मतलब that's why the term simping is coined because वो होता है और बहुत common है और वो हर लड़के के साथ होता है लेकिन like I don't know if you guys agree with this, but Chris Rock करके कॉमेडियन पता ही आपको पता ही so उसके एक स्पेशल में he was उसने एक लाइन बोली थी which I agree to it a lot. It's like कि women, kids and dogs are loved unconditionally. हाँ, Men are ये loved देखा है मैंने। only under a condition that they provide something. Yes, yes. Which from my personal life experience, I feel it's very true. And so that is why a lot of men simp. They don't think कि मतलब एक लड़की चली गई ठीक है दूसरी बात में कभी ना कभी आ जाएगी इट्स नॉट कि खत्म हो गया दुनिया में लड़कियों का बट लड़की ऐसा नहीं सोचती कि मिला ही नहीं है कभी लाइफ में अटेंशन तो जब मिलता है तो लड़की जितना हो सके ले लेते हैं फिर वो जब चला जाता है तो दे ब्रेक डाउन सो बट दैट ऑल्सो टीचर्स यू समथिंग दे आल्सो टीच यू के ओके दिस इज फकरी ये होता रहेगा तो हाँ, आई वो वुड तो जस्ट होता से ही मतलब रहेगा। ऐसे कोई लड़का ऐसा बोलता है तो ऐसा मत बोल कि तू उसका दोस्त नहीं है बेचारे के साथ पहली बार हो रहा है यार ऐसे दोस्त नहीं तो मेरा नहीं, ऐसा मत दैट गाय, मैं उसे स्कूल से समझा रही, उसको मैंने बार-बार यही समझाया, बट उसका ओपिनियन है कि उसका डिफरेंट ओपिनियन है, और मैं उसको ऐसे मतलब वो भी नहीं कर रही कि नहीं तू मत सोच, उसको है शादी-वादी का थोड़ा ज़्यादा। your partner or your girlfriend boyfriend should be part of your life but not the center of your life अब अभी तो बोल रहे थे आपको डेट करना स्टार्ट करना है वापस से। नहीं कर ही रहा हूँ बट ऐसा कुछ है नहीं अभी अच्छा, वो ऐसे इमोशनल कनेक्शन नहीं बॉन्ड। मतलब अभी अभी थोड़ा वो ऐसा इट्स बैलेंस बिटवीन वो कैजुअल डेटिंग एंड मीटिंग सम पीपल I'm meeting other people but ऐसा not dating any specific person बोल सकते हैं like थोड़ा fuck boy फेस चल रहा है अभी अभी let's see यार कोई स्पेसिफिक ओपिनियन है कि करनी है शादी, मतलब कुछ लोगों को तो होता ही है यार, मैं उनके ओपिनियन को ऐसे वो नहीं कर रही, बट आपका ऐसा कुछ है? मतलब eventually I would want to settle with one person obviously uh, but not before I achieve my goals मतलब I can't commit to a marriage मतलब I can be in a relationship which is fine but to like legally commit to a marriage that's something that I would only think after I achieve my career goals stand up podcast I see myself going in the right direction कि लगता है कि हाँ अब I have established this much तब मैं कर सकता हूँ ये सब तब मैं करूँ उसके बारे में सोच आपको एज एंजाइटी होती है क्या? age anxiety नहीं like तुम I don't बिल्कुल know but I think I mean a lot of people also don't when I say that I'm 26 they also like hey 26 का मैं लगता नहीं हूँ and which makes me feel good about myself but I don't fucking care ऐसा हो गया तो हो गया क्या फर्क है मुझे ही पड़ता है। वही मेरे को बहुत ज्यादा I एज think एंजाइटी है। I think लड़कियों में है वो चीज कॉमन है I've नहीं, seen that मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अभी 20 साल की हो जाऊंगी, मेरे को कुछ नहीं है। मेरे को तो लाइक 20 आई एम साल is young नहीं 26 मतलब के लिए लाइक कब बोल Tanya सकता is हूँ also turning 20 but she is very anxious about it. So we are is very it different in probably that aspect. do you compare yourself to other 20-year-olds a lot मैं इसीलिए ऐसा हाँ नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि 20 साल के होने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ओ मैं 20 साल की होने वाली हूँ, बस मेरा तो यही रहता है। और अभी मैं धीरे धीरे करके जैसे मेरा बड़े पास आ रहा है, अब वो चीज खत्म हो रही है, मतलब हो जाएगी वो खत्म। वो मेरा ऐसे बचपन से ही है कि ओ मैं इतने की टर्न हो गई। हाँ आई और थोड़ा बहुत तो होता ही है आई गेस 2022 के एज पे पता नहीं मेरे को याद नहीं शायद मेरे को भी हुआ होगा बट आई एग्जैक्टली बट मोस्टली आई नेवर थॉट ऑफ माय एज और वो मैं बुढ़ा हो रहा हूँ या ऐसा कुछ तो कभी हुआ नहीं बुढ़े तो नहीं हो रहे हो आप, 26 के हो, कैसा लगता है 26 पे? आई मीन काफी बेटर मतलब कंपेयर टू माय 21 22 इयर्स लाइक आई एम मच मोर हैप्पियर नाउ
like I would say that I'm happier. But ऐसा you can't be happy every day. But ऐसा if I just take a sum of all days in a month, then it's a net positive. Happier most days because I do everything that I like to do. I do podcast, I do stand up, I play football, I chill with my friends. So when you just do things that you like, you're bound to be happier. ना मतलब और क्या करना है तुम्हें? बहुत simple mathematical equation है. Do things that you like and do things that are difficult. You will enjoy it. मतलब mix it up. मतलब working out is a difficult thing. I don't like working out every day. मुश्किल है यार वेट्स उठाना ये सब करना इजी इजी नहीं मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी बट करने के बाद तुम्हें अच्छा लगता है and if you do it then everything else for that day is much easier because already the difficult part is done and now it's stuff is easier yeah जो पसंद है वो करो and it's a very generic thing to say to anyone and everyone cannot do what they like but always find a way to do it like ऐसा नहीं कि मैं पूरा टाइम स्टैंड अप कर सकता हूँ फुल टाइम कर सकता हूँ नहीं I have a job marketing job which I don't like but I have to do it because I also want because I want to do stand up so ऐसा balance है मतलब मेरे को जो पसंद की चीज करना है उसके लिए मुझे एक चीज ऐसा भी करना पड़ेगा जो मेरे को नहीं पसंद है मेक पीस विद दैट एंड यू विल फील नाइस यू जस्ट कीप डूइंग थिंग्स यू डोंट लाइक जैसे जो अभी हो रहा है कि इफ यू सी मोस्ट ऑफ पीपल दे जस्ट हैव अ 8 to 9 hours जॉब सुबह सुबह उठ के वो लोग जॉब पे जाते शाम को 8 7 8 बजे वापस आते फिर मोबाइल पे टाइम पास रात को सो जाते क्या लाइफ है मतलब नॉट डूइंग and just waiting for weekends to come so that you can just chill with your family or friends. Still not doing anything that you like. और जो लोग ये चीज करते हैं सब किसका स्केचिंग का इंटरेस्ट हो गया तो अगर वो स्केचिंग करता है तो यू कैन सी दैट दे मच हैप्पियर देन रेगुलर पीपल कॉर्पोरेट सेक्टर का तो मैं कहना चाहूंगी कि मैंने दीदी को देखा है अपने ही इज इन पुणे तो अच्छा खासा है बट वही है कि खुश नहीं है वो उनको अल्टरनेटिव सैटरडेज को छुट्टी मिलती है संडेज को छुट्टी मिलती है एंड शी डेवलप्ड दिस बैक पेन इशू और वो इवन लोनावला तक नहीं गई हैं एंड शी इज वर्किंग देयर फॉर 1 year अब शी इज लाइक फक इट एंड उनको प्रमोशन भी नहीं मतलब मैं क्या ही बोलूँ जिस हिसाब से उनको प्रमोशन मिला है ना आई वाज लाइक कि इतना तो मेरे पापा ही दे देता है मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ी थी जब उन्होंने बताया था उन ये सब चीजें तो मुझे पता चलता ही रहता है फर्स्ट जॉब दैट आई हैड it paid me really well मतलब if I was doing that now if I kept doing that मतलब ऐसे पैसे वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं होता मतलब मेरे को अभी भी नहीं है बट like I would be earning in excess like जैसे comfortable lifestyle काफी जगह घूमने जाना जो घूम सकता था and even that job traveling was part of that job तो कहीं पे कंपनी ट्रिप्स वगैरह भी होती थी but the work was shit और वैसा I feel dreaded मतलब वैसा लोगों से कॉल पे बात करना doing this kind of shit so it's not fun at all and छोड़ के मेरे को अच्छा ही लगा है कभी ऐसा I never thought कि ये जॉब छोड़ के मैंने गलती कर ली फिर आई थिंक फिगरिंग आउट हमेशा चलता रहता है क्या हाँ you keep figuring out of it मतलब eventually नहीं sorry essentially it's like कि पहले मेरे को ये मिक्सअप से निकलना है अब उसके लिए जो easiest way you just take that route and then that easiest way also after a point becomes like कि अरे यार ये क्या कर लिया इसमें से भी निकलना है it takes time and हाँ वो बात भी सही है everyone is busy actually making backup plans everyone is busy doing that तो उनका मेन प्लान है उस पर कोई फोकस नहीं करते बोलते कि ये नहीं चला तो क्या ये नहीं चला तो उसका बैकअप होना चाहिए विच आई वुड नॉट एग्री विद दैट मतलब कि नहीं चला तो नहीं चला थिंक अबाउट दैट लेटर इट्स बेटर दैट यू ट्राई एंड फेल देन रिग्रेट नॉट ट्राइंग एट ऑल ये तो है ही मेरे को सेफर ऑप्शन बोला जाता है बार बार यू नो टेक दिस सेफर ऑप्शन एट होम ना तो That is Indian mentality. Safe, play safe. And playing safe is not fun. Never fun. वही बात तो सही है मैंने अभी तक उतने रिस्क तो लिए नहीं है बट आई डू बिलीव दैट कि जब तक मैं टालने से चीज में नहीं सीखी जब तक मैं फेलियर सीक आउट नहीं करूंगी 12th तक आई वाज लाइक टोटल नर्ड कुछ नहीं करती थी मैं बस पढ़ाई करती थी बट पढ़ाई मैंने बहुत अच्छी सीखी तो फिर बट उसका कुछ फायदा तो हुआ नहीं बट जो भी है तो जब तक मैं फेलियर और रिस्क सीक आउट नहीं करूंगी ना तो सेफ गेम में कुछ मजा भी नहीं है और इट्स लाइक नो ग्रोथ जोन Exactly. तुम लोग स्पोर्ट्स खेलते हो कोई भी स्पोर्ट्स एनी नहीं स्पोर्ट्स नहीं पहले खेला करते थे तो स्पोर्ट्स कोई भी गेम हो गया लाइक इफ यू प्लेइंग विद तुम किसी के साथ खेलते हो ना स्पोर्ट्स तो तुम किसके साथ खेल रहे हो तुम्हें पता है कि ये बंदा तुमसे अच्छा नहीं खेलता तुम उसको हर दिन हरा सकते हो फिर तुम्हें उसके साथ खेलने का मजा नहीं आएगा यू हैव टू अप योर लेवल प्ले विद समवन हु गिव्स यू कंपटीशन एंड दैट इज द रिस्क दैट यू आर taking of losing against someone. You can always keep winning against a player who's not as good as you, but that is not fun. That is comforting because you'll always feel good about yourself. You will always feel in that environment that you're the best. Going to shifting to a different environment where you are not the best, where you could fail, where you could lose, that is risky.
that have like you go in there with a little bit of less confidence. That is important for you as a person to grow. तुम्हें तुम्हारा गेम improve करते रहना चाहिए. You can just be like हाँ यहाँ पे मैं set हो गया, अब मेरे को मजा आ रहा है, इधर ही रहना है. बात तो सही है. इधर तक ही रखे, हो गया. हाँ, मैं भी यही बोलने वाली. हाँ, थक गया मैं बात कर करके. So guys, that's all for today's episode. We had a lot of fun chatting with you, Rohit. Not like talking with you, Rohit, and we got to learn quite a few things, and we are very glad and grateful that you came on our podcast. So for all the audience, make rate our podcast on Spotify and leave a review on Apple Podcast. We're gonna leave all his Links. podcast, Instagram, YouTube links in the description. So go check it out. Yeah. Thank you. Thank you. Bye.